Everyone. So today in this video we will be learning how to create charts in MS Excel and how to create a PowerPoint presentation for the data that we want. So first of all we need to have this app in our mobile phones that says Office. So from the Play Store we can download this app and the name can be Office 360, or you can just see Microsoft Office over there and we can download this app from there. So we'll open this app. Then I usually use this app, so I have so many files over there already, but when you'll open it will be empty. So over here we need to click in this plus button. If you can see at the corner at the bottom we have this plus button over here. So we'll click on this button, and as soon as we click on this button we'll have different options that what do we want to make. We want to make a Word file, Excel file, PowerPoint, or whatever file we want. Then we can select, first of all we have to create an Excel sheet. In the Excel sheet we will be filling the marks of the students. So we'll click on Excel for the same, and when we will click on Excel it will ask us that what do we want to create, a blank workbook or we have to create a template on anything. So we have to click on blank workbook so that we will get a clear new sheet for us. Fine. Right now I'll not make a new sheet because I've already made. So this file ABC, if you see over here, this file is the one that I have already made. So I'll click on this file and I'll show that to you. So as you can see over here that I already have the student's name list over here and the student mark list over here that I have already filled. Okay, so these are the marks and the names of the students that I have already filled, and here I'll just clear this data to show you how it is done. So I'll just clear this. Okay, so here since we have to first of all insert the marks of the students, so I know if any of you doesn't know how to type in Excel, so what we have to do is just we need to click on whatever cell we want to insert the text, and over here we will click over here and we will start typing. Fine, whatever you will be typing it will be over, and we have to click on this green button, so it will be over there. And if you want to clear it, we will just click on this and we can get the clear option over here. So from this option we can select the clear option. Fine. So here the marks have been already inserted and the names of the students are already there. So we need to arrange the marks of the students in a definite order. We have to sort the marks of the students. So for that what we will do is just we will click on B. If you can see over here, B is the column in which the marks have been entered. तो अगर B के अलावा कोई दूसरा कॉलम होता, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क्स फिल किए होते तो मैं C पे क्लिक करती, बट राइट नाउ आई हैव फिल्ड द मार्क्स इन B, so I click on B. So as I have clicked on B, I'll click over here in the menu. ये आपको नीचे मेन्यू दिख रही है, जैसे हमारे लैपटॉप पे वी हैव डिफरेंट टैब्स, सिमिलरली यहाँ पे भी वी हैव डिफरेंट टैब्स. सो आई जस्ट बी ऑन होम बिकॉज राइट नाउ आई वांट दी ऑप्शंस जो होम में है. होम में हम जब नीचे इसको व्हेन वी विल जस्ट स्क्रॉल इट डाउन वी विल सी एन ऑप्शन ऑफ सॉर्ट एंड फिल्टर ओवर हियर. वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर. यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अपने मार्क्स को सॉर्ट कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं. इफ़ यू सी, अगर मैं असेंडिंग में अगर करती हूँ तो देखिए मेरे सारे मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग में आ गए, और अगर मैं डिसेंडिंग में करना चाह रही हूँ तो मार्क्स मेरे सारे डिसेंडिंग में आ गए हैं. सो यू कैन सी जो मार्क्स हैं टॉप पे जो मार्क्स हैं वो 88 हैं, उसके बाद दे आर डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स. ठीक, इतना काम हमारा हो गया. हमारे जो मार्क्स हैं दे हैव बीन सॉर्टेड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट दी रेंजेस. यहाँ पे हम मार्क्स जो लेंगे वो हम 10 की रेंज में लेंगे. तो वी कैन टेक 90 to 100, 80 to 90, 70 to 80, सिमिलरली 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50 एंड बिलो 40. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट रेंजेस दैट आई हैव टेकन, क्योंकि ओवर हेयर द डमी मार्क्स दैट आई हैव फिल्ड, इसमें कोई भी मार्क ऐसा नहीं है जो 90 से ज़्यादा है. तो आई हैव नॉट टेकन 90 to 100. तो ओके, और लेट मी जस्ट टेक एंड देन वी कैन, आई जस्ट शो यू. I'll just insert a row over here. Just a second. I'll just insert a row over here. So यहाँ पे एक रो मेरी इंसर्ट हो चुकी है, एंड आपको नहीं करना, आपको जैसे इस पर टाइप है आप वैसे ही देखिए. तो सबसे पहले आप देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है उसे मैंने 90 to 100 लिखा है. अगली रो में मैंने 80 to 90 लिखा है. देन 70 to 80, 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50 एंड बिलो 40. दीज आर द डिफरेंट व्हाट डू यू से differentiations that I have made, different ranges that I have made. So over here
इफ़ आई सी देन 90 to 100 के बीच में कोई भी मेरा डेटा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई विल राइट 0. आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेल एंड आई विल राइट 0. फाइन. सिमिलरली नाउ वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम 80 to 90. तो आई विल सेलेक्ट ऑल दो सेल्स जो हम 80 to 90 के बीच में जिनके मार्क्स हैं. सो मैं ये सारे सेल्स सेलेक्ट कर लेती हूँ. ठीक है. सेलेक्ट करने के हम क्या करते हैं, हम उस पहले सेल पे क्लिक करते हैं. फिर ये जो सर्कल हमको दिख रहा है, वी विल जस्ट ड्रैग दिस सर्कल डाउन. सो आई जस्ट ड्रैग दिस सर्कल डाउन एंड यू विल सी ऑल दीज सेल्स हैव बीन सिलेक्टिंग. माई MS Excel का जो एक बहुत अच्छा फीचर है वो ये है कि जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो नीचे हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है. यहाँ पे आप देखो न्यूमेरिकल काउंट 6 दिखा रहे हैं ना हमें. दैट मीन्स टोटल जितने हमने सेल्स सिलेक्ट कर रखे हैं, कितने सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं. तो ये हमें बता रहा है कि 6 स्टूडेंट्स आर देयर जिनके मार्क्स 80 to 90 के बीच में. सो वील क्लिक ओवर एंड आई विल राइट 6. देन आई क्लिक टिक. ओके. नाउ अगेन फॉर 70 to 80 आई वांट. So I'll right click on this and select this. So how many students are there जिनके marks 70 to 80 के बीच में? I can see 4 is written over here, so I'll write 4 over here. Similarly for 60 to 70, so I'll select all these between 60 to 70 and I can see total count is 8, so I'll write 8 over here. Then 50 to 60 and total count is 6 again over here, so I'll write 6. Then 40 to 50 I have only 2, as I can see यहाँ पे 2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं मैंने, तो I can write 2 over here. Then I can see जो लास्ट है मेरा that is just 1 digit, so the count between below 40 is just 1. Okay, so my data is done. मेरी रेंज बन के आ चुके हैं कि कितने रेंज में कौन कौन से कितने स्टूडेंट्स का डेटा सेव्ड है. सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ जस्ट आई विल सिलेक्ट दिस. सिलेक्ट करने के लिए मैं पहला जो सेल है हमारी इस पूरी रेंज का जिसका हमें टेबल बनाना है, मैं उस पर क्लिक करूँगी. सो 90 to 10 इज़ द फर्स्ट, 90 to 100 इज़ द फर्स्ट सेल. इस पर क्लिक करने के बाद पहले तो मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करूँगी. सो बोथ दी सेल्स विल बी सिलेक्टेड एंड नाउ आई ड्रैग इट डाउन. सो लाइक दिस द होल रेंज ऑफ सेल्स विल बी सिलेक्टेड. हमारे इतने जितने भी सेल्स हैं इसको हम रेंज ऑफ सेल्स बोलते हैं. सो ऑल दीज रेंज ऑफ सेल्स विल बी सिलेक्टेड. नाउ आई हैव टू इंसर्ट अ चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा. सो आई क्लिक अगेन ओवर हियर. मैं अगेन आई क्लिक ऑन द होम टैब, जहाँ पे होम लिखा है मैं इस पर क्लिक करूँगी. आई गो टू इंसर्ट. आफ्टर गोइंग टू इंसर्ट वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ चार्ट्स ओवर हियर. आप देख सकते हैं मैं चार्ट्स पे क्लिक करूँगी. यहाँ पे ऑप्शंस हैं. सो आई विल इंसर्ट द कॉलम चार्ट ओवर हियर. आई सेलेक्ट द फर्स्ट टाइप बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट नीट एंड क्लीन अकॉर्डिंग टू मी. अब ये चार्ट बनकर आ चुका है. अब इस चार्ट को अगर हम इस पर क्लिक करके अपनी फिंगर को मूव करेंगे स्क्रीन पे, तो ये चार्ट भी उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा. एंड अगर हम इसका साइज़ छोटा करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज़, ये जो हमें एजेस पे जो सर्कल्स दिख रहे हैं, जो डॉट्स दिख रहे हैं, हम इनमें से किसी भी एक डॉट को क्लिक करेंगे. मैं लोअर लेफ्ट वाला जो डॉट है उस पर क्लिक करूँगी और उसको ड्रैग करूँगी ऊपर की तरफ, ताकि चार्ट का साइज़ हमारा छोटा हो सके. सो यू कैन सी द साइज हैज़ बीन डिक्रीज. नाउ आई विल जस्ट ब्रिंग इट ओवर हियर एंड आई विल मूव इट ओवर हियर. सो यू कैन सी one chart has been created for this one particular data. Okay, similarly for the other files or for the other marks also, for the other class students also, we can create same files and we can save our data. Okay, so now when we are done with this, अब मान लीजिए आई एम टीचिंग नॉट ओनली इन वन क्लास बट इन डिफरेंट क्लास. तो सारी क्लासेस के मुझे ऐसे ही स्टूडेंट्स नेम बनाने पड़ेंगे और ऐसे ही मुझे मार्क्स फिल करने हैं. और ये हम अपने पास वैसे भी रखते हैं. वी हैव दी एक्सेल शीट्स. सो इन द सेम शीट ओनली वील क्रिएट अ न्यू शीट. सेम वर्कबुक जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है, इसमें हम एक और शीट बनाएंगे. उसके लिए आपको ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ना, जो लास्ट में लास्ट कॉर्नर पे दिख रहा है ये रेक्टेंगल का, इसमें हमें क्लिक करना है. जब हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए अभी एक ही शीट है. जो साइड में प्लस है मैं इस पर क्लिक करूँगी, एक और शीट बन जाएगी. सो यू कैन सी आई क्लिक्ड ऑन प्लस एंड वन मोर शीट वॉज क्रिएटेड. सिमिलरली यहाँ पे हम अपना दूसरे क्लास का वर्क कर सकते हैं. वी कैन डू द सेम फॉर द सेकेंड क्लास ऑल्सो ओवर हियर. एंड दूसरे क्लास के लिए भी हम ऐसे बना सकते हैं. ऐसे इफ़ आई एम हैविंग मल्टीपल क्लासेस आई कैन मेक इट. अब इनको हमें रीनेम करना है इन केस आई वांट टू रीनेम द शीट्स. सो फॉर एग्जांपल मुझे शीट 1 को रीनेम करना है. मैं शीट 1 जहाँ लिखा है मैं उस पर लॉन्ग प्रेस करूँगी एंड इट विल गिव मी सो मैनी ऑप्शंस. फाइन. सो आई क्लिक ऑन रीनेम. रीनेम पे क्लिक करते हैं. मान लीजिए दिस इज़ फॉर क्लास 6. सो आई राइट क्लास 6 ओवर हियर एंड आई क्लिक नेक्स्ट एंड दिस इज़ डन. फाइन. Similarly over here also I will long press and after long pressing I will get this rename and I can write class 7 or 6A. Then this can be 6B and this is done. So this is how we can create chart and
we can insert the marks and we can arrange the marks in the order, that is the proper order. Now this particular work is done. Now what we have to do is we need to save this file, because हमें जो अपनी आउटपुट देना है उस जो भी हमको अपनी फाइल सबमिट करनी है उन फाइल्स में वी नीड टू गिव द एक्सेल फाइल ऑल्सो विद दैट शुड हैव द मार्क्स एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रेंजेस. और हमें एक प्रेजेंटेशन भी देनी है इन विच वी हैव टू टेल दैट what are the remedial measures that we are taking to boost the growth or the academic growth of the students. So first of all I'll just save this file. Save करने के लिए we'll click on these three dots and I'll click on save as. Save as पे click करने के बाद I'll save this in my device. So I'll just go to documents. In documents में I have these different folders over here. मैं जिस फोल्डर में चाहूँ उस फोल्डर में जाके आई कैन सेव दिस. सो आई फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्लास 9th एंड आई एम जस्ट सेविंग दिस ओवर देयर. So I'll just write the name over here. For example, if I'm writing PQR, if the name of the file I want to save it with this name, so I'll write PQR and I click on save. So you can see this file has been saved. So one work has been done, that is, a file has been saved. Now we need to create a PowerPoint presentation also for the same, in which we will be telling about the different remedial measures and everything. So PowerPoint presentation बनाने के लिए again I'll be clicking on this plus button. Okay, I'll be clicking on PowerPoint. Here also I'll click on blank presentation. So I'll click on blank presentation and it will create a new blank presentation for me. यहाँ पे आप देख सकते हैं PowerPoint open हो गया है. In the PowerPoint if there is only one slide over here, आपको नीचे दिख रही है. लेआउट चेंज करने के लिए किसी भी स्लाइड का नीचे आप देखिए एट द बॉटम कॉर्नर यू आर सेइंग दिस विंडो आपको दिख रही है रेक्टेंगल बॉक्स. आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग लेआउट्स बनकर आ रहे हैं. विच एवर लेआउट यू वांट यू कैन सेलेक्ट दैट वन. सो आई फाइंड टाइटल एंड कंटेंट बेटर. सो ये मैं इस वाले लेआउट को सिलेक्ट करूँगी. यहाँ पे हम अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेमेडियल मेजर्स फॉर क्लास 6. For example, this is the title and here are the different lines that these are the different points that we can mention over here. So यहाँ पे हम अलग अलग points आपने mention कर सकते हैं. For example, I'll write point 1, then I'll press enter, then point 2, then enter, similarly point 3. ठीक, ऐसे करके हम अपनी एक स्लाइड रेडी कर सकते हैं. सिमिलरली आई वांट, क्योंकि सिर्फ एक ही स्लाइड ऐड नहीं करनी, हमें मल्टीपल स्लाइड्स बनानी है. सो आपको इस साइड में प्लस बटन दिख रहा है. आई क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड वन मोर स्लाइड विल बी एडेड. और इसका भी आप देखेंगे तो लेआउट सेम ही आएगा जैसे पुरानी स्लाइड का था. सिमिलरली वी कैन ऐड मल्टीपल स्लाइड्स एज पर आर चॉइस. हाँ, एज मेनी स्लाइड्स एज वी वांट फॉर डिफरेंट क्लासेस हम वहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, see that I'm done with the slides. I have made all the slides. So on the first slide you can see I have mentioned the subject name. तो यहाँ पे हम अपना subject name डालेंगे और नीचे हम यहाँ पे अपना class डालेंगे और teachers name डालेंगे. And then we have to mention the remedial course of action for the bright students. और यहाँ पे हमें सारे points measure करने हैं. We have to double tap over here and we need to enter whatever points we have. For example, point 1. और then again तो हम ऐसे एक करके इसमें points अपने add कर सकते हैं. Similarly, the remedial course of action for the mediocre performers, then for the students who require extra attention, and then at the last we have to enter our remarks, and over here at the corner we have to give our teachers' signatures. So for your convenience I'll be sending this sheet also, and I'll make one Excel sheet template also, and both the sheets I'll be sharing on the group. You just need to follow whatever I have taught in the video, and similarly you can create your own Excel sheet with the chart and an MS PowerPoint sheet in which you are giving your presentation with all the different points. We need to get the hard copy for both. हमें दोनों चीज़ों का प्रिंट आउट निकालना है सारे क्लासेस के, जो भी आप जिस तरीके से ही बना रहे हो, आप सेक्शन वाइज बना रहे हो. तो फॉर डिफरेंट सेक्शंस यू हैव टू मेंशन द रेमेडियल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दैट क्लास, ब्राइट स्टूडेंट्स दैट क्लास, मीडियोकर परफॉर्मर्स इन दैट क्लास, दो स्टूडेंट्स हु रिक्वायर एक्स्ट्रा अटेंशन. We need to get a printout for this done for Excel also and for MS PowerPoint also. तो जो अभी इन केस अगर वो मान लीजिए 6A का क्लास था जिसके मैंने कुछ डेटा इंटर किया था, तो मुझे उस MS Excel वाली शीट का भी प्रिंट आउट निकालना है. और इस पर्टिकुलर MS PowerPoint जो मैं बनाऊंगी उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, इसका भी मुझे प्रिंट आउट निकालना है. दोनों की सॉफ्ट कॉपी भी मुझे अपने पास रखनी है, सो दैट वेन एवर इट इज़ आस्क्ड एंड आई हैव टू सबमिट इट.
So I hope everything is clear, and if anything is missing, just you can just ping me or ask me through DMs, and I'll be happy to answer. Okay, thank you, teachers.